Welcome to SVP Online Education System. Myself, Assistant Professor Pratiksha Patel from Sri S.V. Patel College of Computer Science and Business Management. I think all of you see the video lecture for unit number 1, part 1. In that, we covered already what is Unix OS, then history of Unix, difference between DOS and Windows, after then features of Unix operating system. I think all these things you already know. Okay, so after that, now we will discuss with the next topic, that is also the part of unit number 1. Unit number 1, point number 3, that is the system architecture, or we can say architecture of Unix. Okay, so today we covered this topic. First topic is about system structure of Unix. System structure of Unix is also known as the architecture of Unix. Second is what is shell. Then next is features of the shell, kernel and kernel architecture of Unix operating system. I think if we covered all these points, then unit number 1 is over. So in today's video lecture, we are going to discuss only the first point. That is this first point, system structure of Unix operating system. Okay, that we will see. So move on to the next slide, that is the system structure of Unix. Here in this diagram you see this, in this diagram Unix operating system is made up of 3 layers. Now which are that 3 layers? The first layer, we can say that this is the shell, first layer. Second layer is the kernel. Third layer is the hardware. Okay, now shell, kernel and hardware, how all these layers are interacting with each other, so that we can see in this diagram. Here in this diagram you see that the innermost layer, this black color, innermost layer is known as the hardware layer. After then the second layer, this gray color layer, is known as the kernel layer. After the kernel layer, there is a shell. You can see here in this diagram, shell. Now on this shell prompt or in the shell environment, you can type the command. Which are the command? So sort command, compare command, program command, okay, cut, copy, paste, all these are in this small area. Okay, all these area, here in this area all the commands are written. Why it is written? Because all these commands are written on the shell prompt. Then the outer layer, the outer ring, this layer is known as the user layer. Means here in this layer user can work with the applications. For example, if user want to create a database, then user can use DBMS. Then use a browser. Okay, if user want to transfer some file, then they use FTP, file transfer protocol. Mail is also there. Some application programs are also there. So all these layers combine together to form an operating system. Okay, now the next is system structure. We can continue, but we will see with the notes. Okay, so here first one is the hardware. So hardware layer is the innermost layer of the system. Now hardware layer जो है उसका टास्क क्या है? It provide the services for the operating system. हमने इस डायग्राम में देखा, this is the innermost layer of the system. Okay, और ये जो innermost layer है सिस्टम का, वो ही बाकी सारे जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द शेल.
अब ये जो शेल है, व्हाट इज शेल? तो शेल आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज़ द आउटर लेयर। देख, जैसे इस डायग्राम में भी यहाँ पर भी बताया गया है, हार्डवेयर इज़ द इनर मोस्ट एंड शेल इज़ द आउटर मोस्ट। सिमिलरली you can see in this slide, that is shell is the outer layer and it is an environment where user can enter the command. shell एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्रॉम्प्ट है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर यूज़र अपना कमांड टाइप कर सकता है, कमांड एंटर इजीली कर सकता है। इसीलिए शेल को दूसरा नाम दिया गया है और वो नेम है कमांड इंटरप्रेटर। Why it is command interpreter? Because it interpret the command entered by the user. यूज़र ने जो भी कमांड लिखा है उस कमांड को इंटरप्रेट करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कमांड इंटरप्रेटर। शेल कन्वे दैट कमांड टू दी कर्नल फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। फिर शेल क्या करता है, कर्नल को फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। उसके बाद कर्नल उसे रन करता है और रन करके जो भी आउटपुट है वो फिर से शेल को देता है और शेल यूज़र को देता है। यहाँ पर नेक्स्ट एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बताया गया है, हियर इन दिस पॉइंट, whenever every user login into the system allocate the shell to the individual user। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यूनिक्स है क्लाइंट सर्वर, तो क्लाइंट सर्वर है तो जितने क्लाइंट सिस्टम में ऐड होते जाएंगे उतने शेल सिस्टम में रन होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि लैब में 60 कंप्यूटर है, तो 60 यूज़र्स अपने अपने कंप्यूटर पे वर्क करेंगे, तो हर एक 60 यूज़र का जो शेल होगा वो इंडिविजुअल होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि लैब में 60 शेल है डिफरेंट और कर्नल एक ही है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन जो है वो सिर्फ कहाँ पे है, सर्वर पे है, और शेल जो है वो उस कर्नल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 10 यूज़र्स कनेक्टेड है, तो कितने शेल रन होंगे एट अ टाइम, 10 शेल्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ द कर्नल। Now what is kernel? तो kernel is the heart of the Unix operating system, means it is the core unit of the OS. It resides between the hardware and the shell. हमने यहाँ पर देखा kernel किसके बीच में है, हार्डवेयर और शेल के बीच में लाइज होता है। kernel interact with the actual hardware in the machine language, और kernel ही ऐसा एक पार्ट है, एक प्रोग्राम है जो बाकी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कौन से फॉर्म में? तो मशीन लैंग्वेज में, बिकॉज ऑल द डिवाइस अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, और कर्नल के पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है। आप इस डायग्राम में, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर में है वो बताया गया है, इट इज़ अ कर्नल। कर्नल कर्नल के फंक्शंस क्या है? तो कर्नल मेमोरी को मैनेज करता है, कर्नल प्रोग्राम का शेड्यूलिंग करता है, कर्नल सीपीयू टाइम अलोकेट करता है, कर्नल जब इंटरप्ट कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट आती है और मान लो वो डिवाइस अगर कोई दूसरे प्रोसेस को अलोकेटेड है, तो कर्नल उसको इंटरप्ट करता है और उसको वेटिंग क्यू में डाल देता है। फिर अगर जब वो रिलीज़ हो जाएगा डिवाइस, तो फिर से उसको रिज्यूम करेगा, फिर से इंटरप्ट करेगा। तो वो टास्क भी किसका है? कर्नल का। एंड कर्नल मैनेज द फाइल को मैनेज करने का मतलब है कि यूज़र जो भी फाइल क्रिएट करता है, जो भी फाइल को मॉडिफाई करता है, कॉपी करता है, ओके, तो वो सारे फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस भी कौन मैनेज करता है? कर्नल मैनेज करता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर अबाउट दी कर्नल। उसके बाद है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। यूटिलिटीज़ यानी कमांड को भी हम बोल सकते हैं।
मान लो कि हमने कमांड लिखा mv, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया है, दिस एग्जाम्पल mv file1 file2, इसका मतलब होता है मूव द कंटेंट ऑफ file1 टू file2। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये file1 रीनेम हो गई किस में, file2 में, ठीक है। या फिर mv का मतलब ऐसा भी होता है कि हमने file1 को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। तो जितने भी कमांड्स है वो सारे कमांड्स क्या हैं, यूटिलिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस यानी क्या, तो प्रोग्राम कोई भी है जो एडमिनिस्ट्रेटर लिखता है, यूज़र लिखता है, प्रोग्रामर्स, क्लाइंट्स, कोई भी यूज़र, कोई भी मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या प्रोग्रामर, कोई भी प्रोग्राम जो लिखता है वो सारे प्रोग्राम्स को बोला जाता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आर नॉट द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द यूनिक्स बट इट इज़ अ एक्सटेंडेड पार्ट। ओके, सो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया है, दैट इज़ अबाउट व्हाट, सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स। अब हम बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मतलब हमने आज कंप्लीट सिर्फ कौन सा पॉइंट कंप्लीट किया है, तो हमने आज कंप्लीट किया है ओनली दिस पोर्शन, सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स। ये जो है व्हाट इज शेल, देन फीचर्स ऑफ शेल, कर्नल, आर्किटेक्चर, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए एक टास्क है कि ये जो यूनिक्स का आर्किटेक्चर है यानी कि सिस्टम स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैंने जो बताया, अदर देन दैट अगर आपको कुछ नोट्स मिलती है, कोई पॉइंट्स मिलते हैं, ओके, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। और इसकी ये जो नोट्स है या ये जो पीपीटी है वो भी मैं आपको, अब ग्रुप बन गए हैं, उस ग्रुप में मैं शेयर करूँगी, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर योर फर्दर रेफरेंस। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what we discussed today, and this question is very most important. This question is asked in exam for 7 mark, so be prepared for this question and its answer, okay. So you can see this video again and again, and you can write it down if you want by seeing this video, or you can listen one or more time, then only you are able to understand the topic. Okay, so we will meet in the next video lecture. तब तक के लिए stay safe, stay at home, very good luck, and bye all of you. Thank you so much.